Good morning, dear all students of commerce. My name is Dr. Indramal Goyal. Today we will discuss about accounts to be prepared at the time of dissolution of firm, or we can say how to close the books of a partnership firm. You know, when a partnership firm is dissolved, then all assets are disposed of and all liabilities are paid out and the business of the firm no longer exists. But how you will close the books of the firm, how you will make the final settlement regarding disposal of assets and payment of all liabilities of the firm to the outside parties and to the creditors of the firm. So now we will discuss about the various accounts to be prepared to close the books of a partnership firm. Number one is realization account. इसे बोलते हैं वसूली खाता. In realization account we will write all transactions regarding the sale of assets and payment of liability. वसूली खाता बोलेंगे. And this work is done by the one of the partner of the firm, whosoever is appointed. If all the partners have good and healthy relation, but when the partners have no good and healthy relation and they do not trust or believe on one another, then sometimes external official liquidator is appointed with the consent of all the partners, who will dispose of all assets and liabilities, who will try to sell the assets at the highest value in the market, and he will also try to pay the liabilities as minimum as possible, but he will charge a certain amount as his fees for his services. That will be called as realization expenses. वसूली संबंधी व्यय उसे बोलेंगे. So number one, realization account. Number two, partners loan account. If a partner has given loan to the firm in addition to his capital, then it is to be paid on priority basis. उसका लोन अकाउंट हम अलग से बनाएंगे. एंड नंबर 3 इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर एक साझेदारी फर्म के पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाए गए हैं तो वहाँ पूंजी खाता एक ही होगा, तो हम कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे. लेकिन अगर फर्म ने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रखा है तो वहाँ हमें कैपिटल से रिलेटेड दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे. कौन से? फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप हमने किया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड. So in fixed capital method we prepare two accounts of partners, that is partners current account and partners current. Under fixed capital method, when we prepare partners capital account, then we will write only the capital contributed by the partner and it will remain the same or fixed from year to year. That is why it is called as a fixed capital method. And in fixed capital method, the balance of partners capital will always be credit. Then what about the mutual transaction between firm and partner? In case of fixed capital method, all the mutual transaction between firm and partner from year to year are recorded in their current account. But how you will know that you are to prepare only capital account or you are to prepare capital account or current account? In case of dissolution of firm, the balance sheet of the firm on the date of dissolution will be given to you. So you have to go through the items of balance sheet. If you find partners capital account,
in the liability side of the balance sheet, and the balance of partners capital account are also given separately. In that case, current account balance of one or two partner may be in the liability side and balance of current account of one or two partner may be in the asset side. तो जिन पार्टनर का बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो उसका ओवरड्रॉन अकाउंट है, वो फर्म का डेटर है, एसेट्स में दिखाया हुआ है, फर्म का वो डेटर बना हुआ है बाय द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी में दिया हुआ है, इसका मतलब वो पार्टनर फर्म से अपनी कैपिटल के अलावा करंट अकाउंट में जो रुपया वो भी फर्म से मांगता है। That is why it is part of the liability of the firm. So, under fixed capital method, you have to prepare separately partners' current account and capital. But for final settlement of partners' capital, we will transfer the balance of partners' current account after recording all transactions regarding dissolution of the firm and distribution of the undistributed profit and losses. सारा ट्रांसफर करने के बाद में बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल सेटलमेंट पेमेंट करेंगे। तो थर्ड, और यू मे हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे। How to prepare these accounts? So first of all, now we will discuss about preparation of realization account. हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता, जिसमें संपत्तियों को बेचने से हम पैसा वसूल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो वसूल किया हुआ पैसा है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो आपको क्या दे रखा होगा? At the time of the dissolution of the firm, when you are to work as liquidator, when you are to close the books and accounts of the firm, the balance sheet of the firm will be given on the date of dissolution, and in addition to balance sheet, what is the actual amount realized on individual item of assets, what is the actual amount of the liabilities paid out of the proceed realized against the liabilities of the firm, वो सब आपको क्वेश्चन में अलग से नोट्स के रूप में दे रखा होगा। There will be two types of assets and two types of liability. Recorded liability, unrecorded liability. Recorded liabilities are those liabilities which are clearly mentioned in the balance sheet of the firm, and all those liabilities will be paid by the liquidator of the firm. But sometimes there may be unrecorded liabilities. ऐसी liability जो फर्म को पे करनी है लेकिन उसका लेखा कहीं लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में किया हुआ ही नहीं है, हम भूल गए थे, लेकिन जब फर्म का समापन की बात पता चली तो लेनदार है ना वो पैसे मांगने आ जाएंगे और हमें उनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज विच आर नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म टू बी डिसॉल्व्ड एंड वी हैव टू पे दैट लायबिलिटी, इट विल बी कॉल्ड एज द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। Similarly, there may be unrecorded assets and recorded assets. Recorded assets are those which are clearly mentioned in the asset side of the balance sheet, in the list of the assets of the firm, and they are realized. But sometimes there may be some such assets which are not mentioned in the balance sheet, but they are realized. उनका भी हमें कुछ पैसा मिलता है, तो वो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहलाएगी, उसका भी हमें अकाउंटिंग करना होगा। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स, फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ए फर्म टू बी डिसॉल्व्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। Realization account, it will have two parts. Yes, but it is better to prepare in full page because there
assets and liabilities of the firm. So I will prepare realization account in full screen. So realization. हिंदी में बोलेंगे वसूली खाता. It will have two parts. You see, it will be divided into two parts: the left hand side or the debit side, the right hand side or credit side. We will write here particulars. Amount, rupees dollar. Particulars. Amount, rupees. Now, what items to be considered or taken into realization? So first of all, for preparation of realization account, balance sheet will be given to you. You go through the balance sheet and you have to write all the assets. You know, the balance of all assets is always debit. और जब हम फर्म का समापन कर रहे हैं तो सारी एसेट्स का अकाउंट को क्रेडिट करें. तो जो अकाउंट पहले डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं उसी अमाउंट से, तो वो खाता बंद हो जाता है. और जो लाइबिलिटीज होती है उनका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है. और अगर हमें फर्म का समापन करना तो लाइबिलिटी का पेमेंट करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, तो सारे लाइबिलिटी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली खाते बंद हो जाएंगे. सो फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ द फर्म टू बी डिसॉल्व्ड, all assets of the firm will be transferred in the debit side of realization account, and the entry will be realization account debit to all assets. फर्म की सारी संपत्तियां आ जाएंगी, लेकिन एसेट साइड में दी गई ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी, जिनका कोई वसूली नहीं होगी? तो ऐसी एसेट्स के नाम, तो सारी एसेट्स आएगी वैसे, लेकिन ये नहीं आएगी. तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्सेप्ट EXCEPT, सिवाय इनके. कौन सा? कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश इज इटसेल्फ रियलाइज. कैश और बैंक बैलेंस जो रुपया है उसका कोई अलग से वसूली मूल्य नहीं हो सकता. अदर देन कैश और बैंक जो एसेट्स होती है ना, उनका बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस अलग अलग वैल्यू होती है. लेकिन 1000 रुपये, 2000 का एक नोट है उसकी वैल्यू 2000 ही है, 100 रुपये का एक नोट है उसकी वैल्यू 100 रुपीज ही रहेगा. तो उनकी कोई अलग से वसूली मूल्य नहीं होता है. इट विल बी द मार्क प्राइस. तो कैश नहीं आएगा, फिर बैंक बैलेंस भी नहीं आएगा, कैश और बैंक नहीं आएगा. और क्या नहीं आएगा? और वो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिए हुए हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स and which belong to the partners of the firm, which will be distributed or which will be credited to the partners in their capital account in their old mutual ratio. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिए गए प्रोविजन एंड रिजर्व नहीं आएंगे. जैसे क्या? कैश, बैंक के अलावा, ये तो एसेट साइड में, इसके अलावा जनरल रिजर्व टू ऑल एसेट. तो अपन हम बात करें और एसेट साइड वाले, एसेट साइड का आइटम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, वो नहीं आएगा. कैश और बैंक एसेट्स से नहीं आएगा, P&L नहीं आएगा. और उसके बाद में हमारे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, वो भी नहीं आएगा. तो एक्सेप्ट कैश, बैंक, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसके अलावा अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो भी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये नहीं आएगा. तो ये एसेट्स नहीं आएगी. कैश और बैंक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका अपना अलग से कोई वसूली मूल्य नहीं होता. इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होता है, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसका भी हमें कोई वसूली नहीं होती है. तो वो इक्वल टू लॉस है, इसलिए वो यहाँ हम नहीं लिखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे और पार्टनर्स लोन भी नहीं लिखेंगे.
इसके अलावा ये एसेट सारी आएगी तो फिर क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, बाकी सारी एसेट जो बैलेंस शीट में वो सब आएगी इनके अलावा, राइट? तो ये एसेट सारी हमने लिख दी, बैलेंस शीट का बुक वैल्यू में लिख दी। यहां लिखो टू ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई है उस वैल्यू को हमें यहां दिखाना है और वो अंदर लिखे यहां अमाउंट बाहर लिखेंगे। फिर इधर क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय ऑल लायबिलिटीज। तो यहां सारी लायबिलिटी आएगी बैलेंस शीट में से देखकर जिनका हमें भुगतान करना है। बाय ऑल लायबिलिटीज, वो भी कौन से मूल्य पे? एट बुक वैल्यू आएगी, ठीक है? तो लायबिलिटी साइड में से सारी लायबिलिटी आएगी, पर कौन सी नहीं आएगी? कुछ लायबिलिटी ऐसी है जो नहीं आएगी। तो एक्सेप्ट इनके सिवाय, इन लायबिलिटी के सारी लायबिलिटी आएगी, इनके सिवाय क्या क्या नहीं आएगा? एक्सेप्ट जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये खाते अलग से बनाए जाते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है लेकिन वो नहीं आएंगे। इसके अलावा और क्या नहीं आएगा? हमारे जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा, रिजर्व फंड नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अगर हमारा कोई कंपनसेशन देने के बाद बचा हुआ अमाउंट है तो वो भी नहीं आएगा, उसको भी हम इधर लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप चाहें तो इसे सीधा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दीजिए तो वो भी अपना पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये नहीं आएगा। इसके अलावा पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा तो वो भी इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका खाता अलग से बनाएंगे। पार्टनर्स लोन है, लोन बाय पार्टनर्स, लोन बाय पार्टनर फर्म। तो ये सारे आइटम हैं जो हम नहीं दिखाएंगे। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में दिया तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, वो नहीं आएगा क्योंकि बैंक का कैश का हम अलग अकाउंट खोलेंगे। लेकिन कभी कभी बैंक का बैलेंस लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, वो भी नहीं आएगा। तो वो लायबिलिटी होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी हमने नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो फिर ओवरड्राफ्ट को अपन बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस डीडी। अगर बैंक का एसेट साइड में बैलेंस दिया हुआ है, हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां लिखेंगे टू बैलेंस डीडी जो बैंक में राशि है, ठीक है? तो ये आइटम्स है जो नहीं आएंगे। तो ये सारी लायबिलिटी आएगी, तो बताओ कौन सी लायबिलिटी आएगी? इतनी सारी तो नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये कैपिटल और करंट अकाउंट अलग से खाते बनेंगे। बैंक का भी बैलेंस ओवरड्राफ्ट पे बैंक अकाउंट में जाएगा और बाकी जो फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल जो लायबिलिटी में दिए हुए, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, दे आर द accumulated profit of the past years, they belong to old partners of the firm, so they will be distributed among the partners in their mutual profit sharing ratio. That is why they will not be realized, they will not be transferred to realized. तो ये हमने सारी एसेट्स लिखी थी। इसके अलावा क्या लायबिलिटी आएगी? वो यहाँ लायबिलिटी में आया हमारे स्टॉक, सॉरी लायबिलिटी में आएगा हमारे सर्विस क्रेडिटर्स, बैंक लोन,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो जितनी अलग इनके अलावा जो लायबिलिटी है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया गया है वो सारी दिखाई जाएगी ना। अब ये एसेट्स हमने सारी लायबिलिटी में लिखी, इनको बेचेंगे, बेचने से जो पैसा मिलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। अगर आपका बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो बैंक लिख देना, और अगर आपका बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिया हुआ है तो आप यहाँ बाय बैंक या बाय कैश करेंगे। बाय बैंक और कैश अकाउंट। एसेट्स सोल्ड या आई कैन राइट एसेट्स रियलाइज्ड। कौन सी एसेट्स? दोनों, रिकॉर्डेड एसेट्स जो बैलेंस शीट में दी गई है एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो बैलेंस शीट में तो नहीं दी गई है और फिर भी हमें अगर उसका रुपया मिल रहा है तो ये दोनों आएंगे, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। बाय बैंक और कैश एडिंग हो गया और एसेट्स रियलाइज्ड का पैसा सब इधर आ जाएगा। और इसमें भी दोनों तरह के एसेट्स आएंगे। रिकॉर्डेड एसेट जो बैलेंस शीट में उसकी सेलिंग प्राइस जो इधर लिखेंगे। देखिए एसेट डेबिट साइड पे, बुक वैल्यू पे इधर आएगी डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे उनकी सेलिंग प्राइस आएगी। तो अगर आपने एसेट्स को ओपन मार्केट में बेचा है तो आप बाई एसेट्स, बाई बैंक और कैश लिख के एसेट्स का नाम, बिल्डिंग 50,000 में बेचा, फर्नीचर 20,000 में बेचा, तो जो एसेट्स का जितना मूल्य मिला एसेट्स का नाम और उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ लिख के सारे एक साथ लिख के फिर बाहर लिखेंगे। ये सारी लायबिलिटीज को हम यहाँ एक साथ लिखेंगे। ये जो एसेट्स आ रही थी उनको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो एसेट्स हैं, हम यहाँ तो उनको बेचेंगे या हमने किसी पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने फर्म की कोई एसेट्स ली है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो हम लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट बनाया हुआ है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट यहाँ कौन सा उठाएंगे? वो एसेट्स की अमाउंट, जितने भी कोई एसेट्स पार्टनर ने ली है वो एसेट्स टेकन ओवर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब देखिए लायबिलिटी किधर थी, इन लायबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश। अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया है तो कैश लिख देना, बैंक बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में तो बैंक अकाउंट लिख देना। और कौन सा आएगा यहाँ आएगा सारा पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा भी क्रेडिट को कितना रुपए दिया, बैंक को कितने रुपए चुकाए, तो ये पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड दोनों, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। जो भी लायबिलिटी आपने एक्चुअली पे करी है वो सारी इधर आएगी। टू कैश एंड बैंक में क्या आएगा? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। उसके अलावा जो फर्म का समापन के लिए अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पेड करना पड़ा तो वो भी आएगा। टू कैश और बैंक लिख देंगे और फिर आप लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ये भी इधर आ जाएगा। तो जो लायबिलिटी पेड करेगा वो भी आएगा और जो हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेड करे हैं वो भी इधर दिखाए जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी कि जितनी एसेट्स थी उसका बुक वैल्यू डेबिट में आई और उनका वसूली मिली है वो क्रेडिट में आया। अगर हमने बेचा तो बाय कैश और बैंक में आया, और अगर हमने किसी पार्टनर को एसेट्स ट्रांसफर करी है, जैसे मान लीजिए फर्नीचर को ए ने ले लिया है, पार्टनर है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एस कैपिटल फर्नीचर टेकन एट 20,000, स्टॉक टेकन एट 5,000, तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई एसेट ओपन मार्केट में बेचे तो बाय बैंक, बिल्डिंग सोल्ड, मशीनरी सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, स्टॉक सोल्ड, वो सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगी। तो देखिए हमारी एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या, ट्रांसफर की एंट्री क्या है? दो एंट्री बनी। जैसे बिल्डिंग है 50,000 का बुक वैल्यू में, हम लिखेंगे रियलाइज अकाउंट टू बिल्डिंग 50,000। अब उस बिल्डिंग को मान लीजिए हमने 1,20,000 में बेचा तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट ₹1,20,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी एसेट्स मे बी डिफरेंट देन बुक वैल्यू। सिमिलरली द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी में बी मोर और लेस देन द बुक वैल्यू। कभी कभी हम लायबिलिटी का बुक वैल्यू से कम में पेमेंट करेंगे तो यहाँ एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ लायबिलिटी का वो आएगा, चाहे ज्यादा या कम, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्टनर्स का लोन है, अगर उसमें इंटरेस्ट देना पड़ा तो उसकी भी एंट्री
होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट चूंकि हमें अलग से बनाना है तो आप इधर लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू, ये आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इन सबको एसेट्स बुक वैल्यू में इधर उनकी सेलिंग प्राइस हो गई, डिस्पोजल हो गया, लायबिलिटीज बुक वैल्यू में हमने क्रेडिट में दिखाई और उनका पेमेंट हमने कैश में किया और या फिर वो लायबिलिटी हमने पार्टनर को ट्रांसफर करी है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेकन। कभी कोई पार्टनर्स का वाइफ का लोन है वो पार्टनर खुद पेमेंट करना एक्सेप्ट कर सकता है, क्रेडिट का पेमेंट करने की लायबिलिटी भी कोई पार्टनर ले सकता है। तो लायबिलिटी जो इधर लिखी हुई है बाहर उसका पेमेंट अगर कोई पार्टनर करना चाहे वो एक्सेप्ट करता है तब हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट आ जाएगा अगर हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ लायबिलिटी टेकन होगा, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन। तो आप देखिए लायबिलिटी है वो बुक वैल्यू पे क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के, और उस लायबिलिटी का जब हम पेमेंट करेंगे तो आएगा रियलाइजेशन टू कैश और बैंक जितना एक्चुअल अमाउंट पेड किया, और अगर वो लायबिलिटी किसी पार्टनर ने पेमेंट करना एक्सेप्ट किया तब हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे सी ने लिया कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया हुआ सी वाइफ लोन, तो वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है, इधर आएगा सी वाइफ लोन, और सी ने बोला मैं पेमेंट कर दूंगा ये लायबिलिटी का मेरा वाइफ लोन का, तो इधर हम लिखेंगे टू सी कैपिटल वाइफ लोन, वो डिस्चार्ज होगा। तो जब इधर आए पार्ट सी लोन कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, तो ऐसी कॉन्ट्रा पोस्टिंग हो जाएगी। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन को हमें क्लोज करना। तो यू सी आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज आइटम, आफ्टर रिकॉर्डिंग एसेट्स इन द डेबिट साइड एंड द सेलिंग प्राइस इन द क्रेडिट साइड, after recording all liability and book value in the credit side and after payment of all liabilities in the debit side, we will total up both the sides. If the credit total is higher than debit total, it will result our profit on realization that will be distributed among the partners in their P&L ratio. On the other hand, if the debit side total of the realization account will be higher than credit side total, it will result our loss on realization that will also be distributed among the partners in their P&L ratio. But actually, ultimately, either profit or loss on realization will be there. तो अगर सारे व्यापारों को लिखने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी है तो प्रॉफिट होगा, हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिख देना, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो, और सपोज पार्टनर है ए बी सी तो यहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में और यहाँ लिख देंगे। और अगर हमारी डेबिट साइड टोटल ज्यादा हुई तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। और वो पार्टनर के नाम में सपोज ए बी सी तो उनका जो भी रेशियो है, जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख देंगे, और इस तरह से ये हमारा वसूली खाता बनता है। ये मेन इंपॉर्टेंट। अब ये जब आप बना लेते हैं उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो आसान है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, जिनका लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस दिया वो लायबिलिटी में लिख देना बाय बैलेंस बीडी, और जिन पार्टनर का बैलेंस हो कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाते समय आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी। फिर जब हमारी एंट्री में मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एसेट्स टेकन ओवर, तो पार्टनर के कैपिटल में क्या आएगा बाय रियलाइजेशन एसेट्स टेकन ओवर। अगर एसेट्स इधर है, लायबिलिटी इधर है, पेमेंट हमने इधर किया तो हमारी एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में कॉन्ट्रा में आएगा। तो आपको ये जो अकाउंट बनाया है इसके अकॉर्डिंग एंट्री देके वाइस वर्सा पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जहाँ जो टू बैंक और बाय बैंक आया वो एंट्री बैंक अकाउंट में जाएगी, जो जनरल रिजर्व फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो पार्टनर्स में P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा और कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाना है, पार्टनर्स लोन का लायबिलिटी में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी,
और फिर अगर उस पर इंटरेस्ट दिया हमने अभी तो हम लिख देंगे बाई रियलाइजेशन इंटरेस्ट, और इन दोनों को जोड़ के हम कर देंगे टू बैंक पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ऐसी कॉन्ट्रा पोस्टिंग हो जाएगी, तो लोन अकाउंट भी बंद हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन जो किया वो सही है कि नहीं? तो आप देखिए आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन, अगर आपका अल्टीमेटली बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर आ जाती है, आफ्टर फाइनल सेटलमेंट एंड पेमेंट टू द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज थ्रू कैश एंड बैंक, अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट मिल जाता है तो समझ लीजिए आपने सारा बिल्कुल सही किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। रियलाइजिंग अकाउंट इज द मेन अकाउंट, और इसमें हमने क्या करना है, जब बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ आपको देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जेएलपी रिजर्व दिया गया हो सकता है, तो वो इधर लायबिलिटी में तो आएगा पर उसका कोई पेमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दीज आर प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एसेट्स, तो इसलिए उनका एसेट्स की सेलिंग प्राइस आएगी, इधर हम लिखेंगे जेएलपी रिजर्व, इधर आएगा जेएलपी, ठीक है। तो जेएलपी का सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगी, लेकिन जेएलपी रिजर्व का पेमेंट नहीं होगा। हम एसेट्स में डेटर्स लिखेंगे इधर और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर लिखेंगे, तो डेटर्स की सेलिंग प्राइस तो हमारी इधर आ जाएगी, वसूली मूल्य इधर आ जाएगा, लेकिन जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो इंटरनल क्रिएटेड लायबिलिटी है, उसका कोई पेमेंट नहीं होगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर है तो उनका भी कोई पेमेंट नहीं होगा। फिर अगर कभी कोई एसेट्स है जो टेंजिबल एसेट्स है उसका सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है तो ये हमारी एजम्पशन है, हम ये मानेंगे कि उसको बुक वैल्यू पे बेचा गया। बुक में सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तब भी बुक वैल्यू पे बेचा गया। लेकिन अगर कोई इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, वो बैलेंस शीट में दिए हुए, तो बैलेंस शीट में एसेट्स के कारण कोई यहाँ तो आएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में होने के कारण रियलाइजिंग के डेबिट में तो आएगा, लेकिन उसकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं होगी। हमें यही मानना होगा कि उनका कुछ भी वसूल नहीं हुआ। रियलाइजिंग एक्सपेंसेस फर्म के द्वारा पेड किए जाते हैं, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। लेकिन कभी कभी अगर कोई पार्टनर कहता था कि ये चलो फर्म रियलाइजिंग एक्सपेंसेस मैं दे दूंगा अपने पास से और मैं फर्म से नहीं लूँगा, तो ऐसा वो पर्सनली बियर कर रहा है, तो ऐसा एक्सपेंसेस या फर्म की बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो हमें बाद में उसको लौटाना पड़ेगा, तब हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम। तो रियलाइजेशन में टू एज कैपिटल आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, और एज कैपिटल में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन।